Welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. So we are back with another video regarding power system objective questions by CL Wadhwa. So I hope you are liking this series. And if you are new to this channel, so I request you to please subscribe my channel and also don't forget to hit the bell icon for further notification. और आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके. ठीक है, सो विदाउट अ फर्दर डू let's start this video. So our first question is the order of the subharmonic during the SSR for 50 Hz normal frequency is dash. So options are 25 Hz, 16 2/3 Hz, 10 Hz and none of the above. So हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? We have to find out the order of subharmonic during SSR. सो व्हाट इज SSR? हमने प्रीवियस वीडियो में SSR के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, सो आप उस वीडियो को देख सकते हो. ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन 50 हर्ट्ज एज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? इट इज नथिंग बट 50 हर्ट्ज एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी फॉर द ऑर्डर ऑफ द सब हार्मोनिक ड्यूरिंग SSR. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज नथिंग बट S is equals to F divided by 100. So जो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया गया है, this one we have to substitute here. So what we are going to get? 50 divided by 100. So you are going to get 0.5 hertz. What we are going to get? We are going to get 0.5 hertz. So क्या हमारे ऑप्शन में है ये? No, we don't have. So none of the above is correct. So moving towards next question. A transformer rated for 500 kVA, 11 kV by 0.4 kV has an impedance of 10% and is connected to an infinite bus. The fault level of the transformer is dash. So what we have to find out here? We have to find out the fault level. So what is fault level? It is nothing but हमें short circuit MVA find out करना है. So क्या क्या specifications हमें दिए गए हैं? So here we have been given 500 kVA. So rating क्या है ट्रांसफॉर्मर का? It is nothing but 500 kVA. And what is the value of impedance? It is in per unit, which is nothing but Z per unit is equals to 10%. ठीक है, सो हमें शॉर्ट सर्किट MVA फाइंड आउट करना है, विच इज नथिंग बट फॉल्ट लेवल. सो शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है MVA डिवाइडेड बाय Z, बट यहाँ हमें MVA के फॉर्म में नहीं दिया गया है. वी हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ KVA. सो आप बस KVA को सब्स्टिट्यूट कीजिए. ठीक है, सो विच इज नथिंग बट 500 divided by Z. So Z क्या है? हमारा Z per unit is nothing but 10%. So you have to write 0.1, which is nothing but 5000 kVA. So short circuit MVA का वैल्यू कितना आया है? शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू आया है 5000 kVA. So in which option we have this 5000 kVA? So it is an option number B. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. So our next question is, with the help of a reactive compensator, it is possible to have dash. So options are constant voltage operation only, unity power factor operation only, both constant voltage and unity power factor, either constant voltage or unity power factor. So these are the option which we have been given. So यहाँ हमें specify नहीं किया गया है कि कौन सा reactive power compensation हो रहा है. ठीक है, अगर कोई भी हमें specify नहीं किया गया है, then we have to go through options one by one. ठीक है, so हमें यहाँ options में बस दो चीज दिख रही है. First one is constant voltage operation and second one is power factor operation. तो ये जब कांस्टेंट वोल्टेज और पावर फैक्टर ऑपरेशन, हम कौन से रिएक्टिव पावर कॉम्पनसेशन टेक्निक यूज करके हमें ये मिल सकता है? सो अगर आपको याद हो तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के रिएक्टिव पावर कॉम्पनसेशन टेक्निक्स होते हैं.
ठीक है, फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन इज शंट. So if I have to give you information regarding reactive compensation, so I'll just write here reactive compensation technique. So we have here two types. So first one we have here is series compensation. Next one we have here is shunt compensation. ठीक है, सीरीज कॉम्पनसेशन में भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स आते हैं एंड शंट में भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स आते हैं. सो सीरीज में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? सीरीज इंडक्टिव कॉम्पनसेशन, सीरीज इंडक्टिव कॉम्पनसेशन एंड सीरीज कैपेसिटिव कॉम्पनसेशन एंड सीरीज कैपेसिटिव कॉम्पनसेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज शंट इंडक्टिव कॉम्पनसेशन एंड शंट कैपेसिटिव कॉम्पनसेशन. ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव. सो यहाँ जो इंडिविजुअल हमारे पास सीरीज इंडक्टिव कॉम्पनसेशन, सीरीज कैपेसिटिव कॉम्पनसेशन, शंट इंडक्टिव कॉम्पनसेशन और शंट कैपेसिटिव कॉम्पनसेशन के बारे में जो दिया गया है उसे हम चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द चार्ट. सो सबसे पहले हम नीचे वाला चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम ऊपर वाला चार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हियर वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ compensation techniques. So first one we have here is series capacitor compensation, second we have here is series inductor compensation, then we have shunt capacitor compensation and last one we have here is shunt inductor compensation. ठीक है, so first one is series capacitor. So series capacitor क्या करता है? series capacitor stability को improve करता है. कैसे stability को improve करेगा? एज यू ऑल नो कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे डोमिनेटिंग एलिमेंट कौन सा होता है? विच इज नथिंग बट इंडक्टर. ठीक है, सो आपको पता है कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी दैट मीन्स पी का वैल्यू क्या होता है? पी इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई जेड. ठीक है, सो जितना कम जेड का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगा एंड ऑल्सो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी उतना ही इम्प्रूव करेगा. सो अगर हमें Z को डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? जो लाइन में हमारे पास ज्यादा डोमिनेटिंग एलिमेंट विच इज नथिंग बट इंडक्टर, अगर इंडक्टर के सीरीज में हमने कैपेसिटर लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट Z निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी ZL माइनस ZC. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि Z का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. अगर Z का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हमारा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी या फिर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है. सो सीरीज कैपेसिटर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज सीरीज इंडक्टर. सीरीज इंडक्टर क्या करता है? रिड्यूस फॉल्ट करंट एंड रिपल्स. सो अगर जितना ज्यादा हमारे पास इंडक्टर रहेगा, सो मोर द इंडक्टर वैल्यू, उतना ही लेस हमारे पास करंट आ जाएगा. हाउ? सो I is equals to V by Z. So more the value of inductor, lesser will be the fault current. Third one we have here is shunt capacitor. So shunt capacitor क्या करता है? Shunt capacitor power factor को improve करता है. And last one we have here is shunt inductor. So shunt inductor क्या करेगा? Shunt inductor will reduce the Faraday effect. So Faraday effect किस वजह से होती है? अगर हमारी जो लाइन है नो लोड पे है, ठीक है, या फिर लाइटली लोड पे है, सो ड्यू टू दैट वोल्टेज राइज हो जाता है. सो उस वोल्टेज राइज को कॉम्पनसेट करने के लिए हम शंट इंडक्टर का यूज करते हैं. सो शंट इंडक्टर यूज करके हम फैरेडे इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पनसेशन टेक्निक्स देख लिए, बट हियर वी हैव मेन डिफरेंस बिटवीन सीरीज कैपेसिटर एंड शंट कैपेसिटर. सो चलिए हम इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सो द वोल्टेज बूस्ट प्रोड्यूस्ड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन. सो सीरीज कैपेसिटर में क्या होता है, जो वोल्टेज बूस्ट होता है वो थ्रू आउट द लाइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है.
ठीक है। एंड इन केस ऑफ शंट कैपेसिटर में क्या होता है, जब हम वोल्टेज बूस्ट करते हैं तो थ्रू आउट लेंथ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज फॉर सेम वोल्टेज बूस्ट रिक्वायर्ड लो रेटिंग सीरीज कैपेसिटर। सो अगर हमें सेम क्वांटिटी का वोल्टेज बूस्ट कराना है तो लो रेटिंग ऑफ सीरीज कैपेसिटर का भी यूज करके हम कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि वोल्टेज बूस्ट करा सकते हैं। एंड इन केस ऑफ शंट कैपेसिटर फॉर सेम वोल्टेज बूस्ट रिक्वायर्ड हाई रेटिंग शंट कैपेसिटर। सो यहाँ हाई रेटिंग का शंट कैपेसिटर हमें यूज करना पड़ता है फॉर वोल्टेज बूस्ट ऑफ सेम स्पेसिफिकेशन। ठीक है। सो स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज से होता है, सीरीज कैपेसिटर से। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इट इज नथिंग बट इंडक्टर। सो उस इंडक्टर को अगर हम थोड़ा सा भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश किए सो जेड का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। अगर जेड का वैल्यूज डिक्रीज होगा देन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन स्टेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ शंट कैपेसिटर ये ज्यादातर इम्पैक्ट नहीं होता है स्टेबिलिटी पे। ठीक है। The next one we have here is little impact on power factor improvement. So yes, हमने देखा था कि power factor improvement हम किस चीज से कर रहे थे, हम शंट कैपेसिटर का यूज करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते थे। बट सीरीज कैपेसिटर के केस में क्या होता है, लिटिल इम्पैक्ट होता है ऑन पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, बट it has a great impact on power factor improvement if we are talking about shunt capacitor. So next point we have here is यहाँ इंक्रीज नहीं चाहिए। ठीक है, हियर इट शुड बी डिक्रीज। फेरेंटी इफेक्ट यहाँ रिड्यूस होता है और यहाँ डिक्रीज की जगह आप इंक्रीज कीजिए, फेरेंटी इफेक्ट यहाँ इंक्रीज होता है। ठीक है। सो सीरीज कैपेसिटर के केस में क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट डिक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ शंट कैपेसिटर के केस में फेरेंटी इफेक्ट इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, यहाँ भी इंक्रीज होता है। एंड इन केस ऑफ शंट कैपेसिटर surge impedance loading also increases. ठीक है। So next one we have here is produced fixed compensation. So yes, ये fixed compensation है, यहाँ हम vary नहीं कर सकते हैं compensation। So यहाँ fixed capacitor लगे हुए होते हैं। So produce fixed compensation and here also produce fixed compensation. So I hope आपको इस चार्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा अभी। सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन जो हमें आंसर करना था, इसमें क्या आंसर आना चाहिए। सो एज यू ऑल नो कि हमें ऑप्शंस में वोल्टेज प्रोफाइल के फॉर्म में दिया गया है एंड ऑल्सो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में दिया गया है। सो आपको पता है कि ये दोनों रिलेटेड होते हैं शंट कॉम्पनसेशन टेक्निक से। ठीक है। सो शंट इंडक्टिव कॉम्पनसेशन टेक्निक में क्या हो रहा है, शंट इंडक्टिव कॉम्पनसेशन टेक्निक में वोल्टेज इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज इंप्रूव हो रहा है एंड इन शंट कैपेसिटिव कॉम्पनसेशन में पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं? नहीं, हम एक तो वोल्टेज को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एट अ टाइम हम दोनों को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो जो करेक्ट आंसर होता है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। So option number D is either constant voltage or unity power factor. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So moving towards our next question. So our next question is the efficiency of a power transformer under no load condition is approximately dash. So options are 75%, 50%, 25% and none of the above. So यहाँ हमें no load पे पूछा गया है। ठीक है, सो नो लोड पे इफ आई हैव टू ड्रॉ हियर फिगर ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। सो नो लोड पे एक तो लोड कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अगर लोड ही कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या हमें यहाँ कोई करंट मिलेगा? सो हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स करंट इज इक्वल्स टू जीरो। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सो हमें आउटपुट पावर ही नहीं मिलेगा बिकॉज करंट का वैल्यू जीरो है। अगर करंट का वैल्यू जीरो है तो आउटपुट पावर भी जीरो होगा। सो आउटपुट पावर अगर जीरो होगा तो इफिशियंसी भी जीरो मिलेगा। ठीक है, सो इफिशियंसी कितना मिलेगा? इफिशियंसी इज
0. सो क्या हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है आंसर? नो. सो ऑप्शन नंबर डी, विच इज नथिंग बट नन ऑफ द अबव. सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज यहाँ नो लोड कंडीशन दिया गया है. सो अंडर नो लोड कंडीशन हमारे पास कोई भी लोड में करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज लोड ही कनेक्टेड नहीं है ना. अगर लोड ही कनेक्टेड नहीं होगा तो हमें आउटपुट पावर नहीं मिलेगा. सो अगर हमें आउटपुट पावर नहीं मिलेगा तो हम एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे. सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज नथिंग बट 0%. सो हियर वी हैव वन चार्ट रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर. सो ये हमारा चार्ट है रिगार्डिंग पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है इट इज अवेलेबल इन ट्रांसमिशन नेटवर्क. वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 33 kV. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अवेलेबल होता है और इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? इट्स वोल्टेज लेवल इज गोइंग टू बी लेस देन 33 kV. सो पावर ट्रांसफॉर्मर का ग्रेटर देन 33 kV एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का 33 kV से कम होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज consumer are not directly connected to the power transformer. Yes. And in case of distribution transformer are directly connected to the consumer. So yes, ये भी correct है, because distribution transformer जो होता है वो directly consumer से connected होता है. Next one in power transformer is that load fluctuations are less. क्यों लेस होता है? बिकॉज कंज्यूमर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं ना, दैट्स वाई लोड फ्लक्चुएशन लेस होता है. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लोड फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, बिकॉज मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. फॉर दिस रीजन ओनली लोड फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज स्टेडीली लोडेड एट फुल लोड थ्रू आउट 24 आवर्स. सो पावर ट्रांसफॉर्मर ये 24 आवर्स में स्टेडीली लोडेड हो सकते हैं एट फुल लोड. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ये जो लोडिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का ये लोड साइकिल पे बेस्ड होता है. ठीक है. सो लोड साइकिल पे बेस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस टेक्स प्लेस स्टेडीली थ्रू आउट 24 आवर्स. सो पूरे 24 आवर्स में कॉपर लॉसेस भी होते हैं और आयरन लॉसेस भी होते हैं. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉसेस लोड साइकिल पे बेस्ड होता है. ठीक है. सो कॉपर लॉसेस किस पे बेस्ड होता है? लोड साइकिल पे बेस्ड होता है. बट जो आयरन लॉसेस होता है ये थ्रू आउट 24 आवर्स होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज कॉपर लॉसेस आर केप्ट मिनिमम व्हाइल डिजाइनिंग. सो यहाँ कॉपर लॉसेस कम किए जाते हैं वाइल डिजाइनिंग. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉसेस आर केप्ट मिनिमम वाइल डिजाइनिंग. सो इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉसेस को मिनिमम रखते हैं, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉसेस को मिनिमम रखते हैं वाइल डिजाइनिंग. ठीक है. सो पावर ट्रांसफॉर्मर का कोर किससे बनाया जाता है? सो इट इज नथिंग बट CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड. ठीक है. सो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कोर होता है. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इट इज एमॉर्फस स्टील कोर. इट इज एमॉर्फस स्टील कोर. जो स्पेसिफिक वेट होता है पावर ट्रांसफॉर्मर का वो लेस होता है, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्पेसिफिक वेट इज मोर. Next one we have here is average load on transformer is almost near to full load. But in case of distribution transformer जो average load होता है ट्रांसफॉर्मर पे that is nothing but 70 to 75% to the full load. जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफॉर्मर की इट इज नियर टू फुल लोड. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर maximum efficiency occurs at 70 to 75% of full load. So I hope आपको ये चार्ट के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Sir, next question is a 3-phase induction motor is drawing 5 ampere when a single phasing takes place. The current now drawn by the motor is dash. सो हमें यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ इंडक्शन मोटर दिया गया है. विच मोटर? इट इज नथिंग बट इंडक्शन मोटर.
So induction motor is drawing 5 ampere and when a single phasing is takes place, यह single phasing हो रहा है अभी. So जो current draw करेंगे मोटर that we need to find out. ठीक है. So in case of 3 phase, अगर इंडक्शन मोटर 3 फेज होगा, ठीक है, सो अगर इंडक्शन मोटर 3 फेज होगा देन करंट इज गोइंग टू बी आई. ठीक है, अगर उसका हमने सिंगल फेजिंग कर दिया देन इट इज गोइंग टू बी आई डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी आई डिवाइडेड बाय √3. और जो ये 5 एम्पियर दिया गया है ये कब का वैल्यू है? 5 एम्पियर तब का वैल्यू है व्हेन इट इज अ सिंगल फेजिंग. ठीक है, so when single phasing is taking place then current is going to be 5 ampere and now we have to find out for 3 phasing. So single phasing के लिए कितना दिया गया है? 5. So आपको I का वैल्यू फाइंड आउट करना है. So I का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? You have to just multiply √3 with 5 then you are going to get √3 into 5 ampere. So this is going to be the answer. सो क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए. क्या दिया गया है? अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ड्रॉइंग 5 एम्पियर व्हेन अ सिंगल फेजिंग टेक्स प्लेस. सो जब सिंगल फेजिंग होगा तब ये इंडक्शन मोटर 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है. सो हमें करंट फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज 3 फेज. सो 3 फेज के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया है करंट, सो विच इज नथिंग बट 5 √3 ampere. So it is in option number B. So option number B is only correct answer for this. So moving towards next question. So when a DC source is switched in a purely inductive circuit, the current response is dash. So options are an exponentially rising curve, an exponentially decaying curve, a straight line passing through the origin, a straight line offset from the origin. So this is what we have been given. So सबसे पहले तो हम यहाँ सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. So सर्किट डायग्राम is going to be this one. यहाँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट दिया गया है. So here we should have inductor only. It is L and this is going to be Vs. So आपको पता है कि Vs is equals to L di by dt. तो जो करंट फ्लो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी I. सो आपको यहाँ क्या करना है? यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. सो हाउ यू विल सिंप्लीफाई? Vs dt is equals to L di. Now we have to integrate on both the side. आपको इंटीग्रेट करना है both the side. So after integration what we are going to get? We are going to get Vs into t. बिकॉज dt का इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको सिंपली t मिलेगा. Vs तो कांस्टेंट है ना, सो Vs बाहर आ जाएगा एंड हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो dt का होगा. सो आपको dt का इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपको t मिलेगा. सिमिलरली L इज कांस्टेंट, L बाहर आ जाएगा, सो di का इंटीग्रेशन करना है. सो di का इंटीग्रेशन जब आप करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट I. ठीक है. So now what we have to find out? We have to find out current response. That means आपको current I find out करना है. So I is equals to Vs into T divided by L. So इस इक्वेशन को आप देखिए, क्या ये इक्वेशन आपको y is equals to mx के फॉर्म में दिख रहा है? y is equals to mx is nothing but it is the equation of a line which is passing through origin. So यहाँ क्या मैं I लिख सकती हूँ? I and here T. So in case of Y we have here current, but in case of X we have here T, time. और जो slope दिया गया है which is nothing but Vs divided by L. So हमें ऑप्शंस में क्या दिया गया है? ऑप्शंस में हमें दिया गया है that it is a straight line. So क्या ये straight line origin से पास हो रही है? Yes, it is passing through origin. So ऑप्शन सी आप देखिए, ऑप्शन सी में लिखा गया है कि it is a straight line passing through the origin. So हमने करंट रिस्पॉन्स को तो फाइंड आउट कर लिया है एंड ऑल्सो वी गॉट टू नो कि इसका कर्व कैसा होने वाला है. ठीक है, हमने ग्राफ फाइंड आउट कर लिया और ये जो ग्राफ आया है हाउ इट इज
It is a straight line which is passing through origin. So option number C is only correct answer for this. Now moving towards next question. So our question is the voltage and current in a circuit are given by. So यहाँ वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है और करंट का भी वैल्यू दिया गया है और हमें पावर फाइंड आउट करना है. सो पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज यू ऑल नो कि P इज इक्वल्स टू V RMS I RMS and cos phi. So cos phi क्या होता है? Cos phi is nothing but power factor, but phi is nothing but it is the angle between V and I. So यहाँ हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, दिस इज एंड दिस वन. बट यहाँ आप देख सकते हो कि y जो दिया गया है y लैग कर रहा है करंट को और I लीड कर रहा है वोल्टेज को. सो आई विल जस्ट ड्रॉ हियर. सो दिस इज आवर वोल्टेज एंड करंट वेक्टर डायग्राम. सो यहाँ हमारे पास करंट लीड कर रहा है एंड वोल्टेज इज लैगिंग. किस एंगल से करंट लीड कर रहा है? दिस इज आवर रेफरेंस. सो करंट इज लीडिंग बाय 30 डिग्री एंड वोल्टेज इज लैगिंग बाय 30 डिग्री. और ये जो लीडिंग और लैगिंग का प्रोसीजर हम रेफरेंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है. सो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? इन दोनों के बीच में ओवरऑल एंगल इज 60 डिग्री. सो आप यहाँ फाई की जगह 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है. सो वी आर एम एस एंड आई आर एम एस. सो आर एम एस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है, ठीक है. सो 10 साइन समथिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव, ठीक है. सो वी एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू. सो इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर हमें आर एम एस में कन्वर्ट करना होगा, सो हम आर एम एस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आर एम एस इज इक्वल्स टू वी एम डिवाइडेड बाय रूट 2. सो आप यहाँ 1 by 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज को. सो वी आर एम एस इट इज नथिंग बट 10 डिवाइडेड बाय रूट 2. आई आर एम एस इज नथिंग बट 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 एंड cos phi. सो cos का एंगल कितना है? cos 60 डिग्री. सो cos 60 डिग्री इज नथिंग बट हाफ, ठीक है. सो 100 divided by 2 into 1 by 2. So we are going to get 25 watts. ठीक है. सो पावर कितना निकल के आया है? पावर इज इक्वल्स टू 25 watts. सो इन विच ऑप्शन हमें ये पावर इज इक्वल्स टू 25 watts दिख रहा है? सो इट इज इन ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. So next question is, in a large interconnected power system, consider 3 buses having short circuit capacities 1500 MVA, 1200 MVA and 1000 MVA respectively. The voltages of all the buses are 1 per unit. If a 3-phase fault takes place on a bus 2, the change in bus voltage is described as dash. So here we have 3 buses. कितने buses है? Here we have bus number 1, bus number 2 and bus number 3. और ये buses interconnected है, ठीक है. So they are interconnected. So you can consider this as bus number 1, this as bus number 2 and this as bus number 3. So bus 1 का जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है वो कितना दिया गया है? इट इज नथिंग बट 1500 MVA. बस नंबर 2 का इट इज नथिंग बट 1000 MVA. सॉरी, इट इज 1200 MVA. इट इज 1200 MVA. एंड बस नंबर 3 का कितना दिया गया है? बस नंबर 3 का 1000 MVA, ठीक है. सो यहाँ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर हुआ है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किस बस पे ऑकर हुआ है? सो फॉल्ट टेक्स प्लेस ऑन बस नंबर 2. सो बस नंबर 2 पे फॉल्ट ऑकर हुआ है. सो वेयर इज बस नंबर 2?
सो वी हैव हियर बस नंबर 2, यहाँ फॉल्ट ऑकर हुआ है, ठीक है। सो जब भी फॉल्ट ऑकर होता है, सो मोस्ट अफेक्टेड कौन सा बस होगा? मोस्ट अफेक्टेड बस इज गोइंग टू बी बस नंबर 2 ओनली, एज बस नंबर 2 इज गेटिंग मोर अफेक्टेड बाय द फॉल्ट। सो जो वोल्टेज वेरिएशंस होने वाला है वो बस नंबर 2 पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जो भी वेरिएशन होने वाला है वोल्टेज का वो सबसे ज्यादा बस नंबर 2 पे होगा। उसके बाद में जो मोस्ट अफेक्टेड बस होगा ड्यू टू दिस फॉल्ट, इट इज गोइंग टू बी जिसका सबसे कम एमवीए हो। इस बस के बाद में सबसे कम जिसका एमवीए हो वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। सो विच इज नथिंग बट बस नंबर 3, बिकॉज इसका 1000 है और बस नंबर 1 का कितना है 1500। सो बस नंबर 2 के बाद में सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होगा दैट इज गोइंग टू बी बस नंबर 3। दैट मीन्स जो वेरिएशंस होने वाला है वोल्टेज का वो बस नंबर 3 पे होगा और उसके बाद में बस नंबर 1 पे होने वाला है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर 3 फेज फॉल्ट ऑकर हो गया बस नंबर 2 पे, सो सबसे ज्यादा अफेक्टेड बस नंबर 2 रहेगा, ठीक है। सो बस नंबर 2 के बाद में सबसे ज्यादा अफेक्टेड बस वही होगा जिसका एमवीए कैपेसिटी कम हो। सबसे कम किसका एमवीए कैपेसिटी है? इट इज नथिंग बट 1000 एमवीए। 1000 एमवीए पे सबसे ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा। एंड थर्ड वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा आपको, ठीक है। 1000 के बाद में हमारे पास 1500 आया है। लास्टली जो वेरिएशन होने वाला है वोल्टेज का जो ज्यादातर अफेक्टेड नहीं होगा दैट इज गोइंग टू बी बस नंबर 1, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर एंड लेट्स चेक कि किस ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है। सो इट इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो हमने यहाँ उल्टा लिखा है, ठीक है। हमने सबसे पहले V2 लिखा है, यहाँ हमारे पास लास्ट में लिखा है बट इट इज इन दिस ऑर्डर ओनली, ठीक है। सबसे ज्यादा V2, देन वी हैव V3 एंड देन वी हैव V1। सबसे कम अफेक्टेड होगा V1 एंड देन वी हैव V3 एंड देन लास्ट में V2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर अ लॉन्ग अनकम्पनसेटेड लाइन द लिमिट to the line loading is governed by dash. So options are thermal limit, next one is voltage drop, then we have stability limit and last one we have here is corona loss. So we have one chart regarding this. So चलिए उस चार्ट को हम one by one डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So guys this is the chart जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 80 किलोमीटर। और जो पैरामीटर्स हम कंसीडर करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इट इज गोइंग टू बी आर एंड एल। जो पैरामीटर्स हम निग्लेक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सी एंड जी। जो नेटवर्क मॉडलिंग होने वाला है इट इज गोइंग टू बी लम्प्ड मॉडल। लम्प्ड मॉडल क्या होता है? इट इज नथिंग बट कि पूरा का पूरा जो एलिमेंट होगा विच इज नथिंग बट आर एंड एल, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में हम एक ही इसमें कंसिडर करेंगे। अगर पूरे ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आर होगा तो हम उसे एक में ही कंसिडर करेंगे। अगर पूरे ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस एल होगा तो उसे हम पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कंसिडर करेंगे, ठीक है। इट इज नथिंग बट लम्प्ड मॉडल। और जो लोडेबिलिटी होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वो किस बेसिस पे किया जाता है? थर्मल लिमिट के बेसिस पे, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज मीडियम लाइन। मीडियम लाइन का लेंथ 80 से 160 किलोमीटर तक होता है। कोई बुक में 80 से लेके 240 किलोमीटर तक भी कंसिडर किया गया है, ठीक है। जो पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं इट इज नथिंग बट आर एल एंड सी। यहाँ सी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो निग्लेक्ट किया गया है पैरामीटर इट इज नथिंग बट जी। जो नेटवर्क मॉडलिंग होता है इट इज वंस अगेन लम्प्ड मॉडल। और जो लोडेबिलिटी होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन लिमिट को देखते हुए किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन वी हैव हियर इज लॉन्ग लाइन। लॉन्ग लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए? लॉन्ग लाइन का लेंथ ग्रेटर देन 160 या फिर ग्रेटर देन 240 किलोमीटर होना चाहिए।
जो पैरामीटर्स हम कंसिडर करेंगे वो सारे के सारे पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे RLCG। जो पैरामीटर्स हम निगलेक्ट करेंगे इट इज नथिंग। और जो नेटवर्क मॉडलिंग होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म मतलब पूरे ट्रांसमिशन लाइन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में RLC को फिर से हम RLC को फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आवर ट्रांसमिशन लाइन इन दिस कंसिडरेबल पैरामीटर्स। और जो लोडेबिलिटी होता है वो किस बेसिस पे होता है, स्टेबिलिटी लिमिट को देखते हैं, ठीक है। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमें पूछा गया था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सो एज इट इज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो हमने अभी देखा था कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, स्टेबिलिटी लिमिट को देखते हुए। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टूवर्ड्स our last question for this video. So our last question is, for a lossless line terminated by its surge impedance, the natural reactive power loading is dash. So यहाँ हमें क्या दिया गया है, we have been given lossless line. So lossless line क्या होता है, R का वैल्यू जब 0 होता है and also G का वैल्यू जब 0 होता है, then only we can be able to say कि वो एक particular ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। और सर्ज इंपिडेंस दिया गया है, सो सर्ज इंपिडेंस ZS इज इक्वल्स टू √L/C। सो ये क्या होता है, ये प्योरली रेजिस्टिव होता है, प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिएक्टिव पावर लोडिंग क्या होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करूँ, हियर वी हैव जनरेटिंग स्टेशन, देन विल बी हैविंग ट्रांसमिशन लाइन जिसे हमने टर्मिनेट किया है सर्ज इम्पिडेंस से, ठीक है। सो ZS से हमने इसे टर्मिनेट किया है। सो हमें यहाँ रिएक्टिव पावर लोडिंग के बारे में पूछा गया है, बट एज यू ऑल नो कि जो हमारा सर्ज इम्पिडेंस होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है। अगर ये प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर है देन बस एक्टिव पावर ही फ्लो होगा, रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सो S इज इक्वल्स टू P प्लस और माइनस JQ, ठीक है। बट एज यू ऑल नो कि रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ये प्योरली रेजिस्टिव वैल्यू है। सो विल बी हैविंग Q इज इक्वल्स टू 0 एंड विल बी हैविंग अपेरेंट पावर इज इक्वल्स टू एक्टिव पावर ओनली। और Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू 0 है। बट हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया है Q के रिगार्डिंग। सो नेचुरल रिएक्टिव पावर लोडिंग क्या होना चाहिए ये पूछा गया है हमें। सो नेचुरल रिएक्टिव पावर लोडिंग तो 0 होगा। और जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D ओनली। सो ऑप्शन नंबर D ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको CL वाधवा की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। अगर आपको कोई फीडबैक देना होगा रिगार्डिंग CL वाधवा सीरीज तो आप उसे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ताकि मैं भी उसमें अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।